एमएलए कस्तूरबा नगर श्री मदन लाल जी भी हमारे बीच में हैं। स्पेशल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट मेंबर सेक्रेटरी डीपीसीसी डॉक्टर के एस जयचंद्रन हमारे साथ हैं। सेक्रेटरी टू ऑनरेबल एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर सर मिसेस रीना गुप्ता भी हमारे साथ में हैं और ये ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, पूरे विश्व में सुख शांति हो, माँ का आशीर्वाद दीपक की लौ हमें दे, सद्बुद्धि दे। और इस कार्यक्रम का आज जो शुभारंभ हो रहा है, इस कार्यक्रम को, इस 3 दिवसीय मेले को ईश्वर सफल करे। आइए जोरदार तालियां बजाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन माननीय मंत्री महोदय जी का। और आप यहाँ आए हैं, अपना कीमती समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते फूल इसी तरह हम सब मुस्कुराते रहें। ऑनरेबल एमएलए सर कस्तूरबा नगर श्री मदन लाल जी का भी हम स्वागत करते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट मेंबर सेक्रेटरी डीपीसीसी डॉक्टर के एस जयचंद्रन जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों, हमारे लिए बहुत गर्व का समय है ये और गर्व का दिन है। एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर सर मिसेस रीना गुप्ता जी का भी हम तहे दिल से स्वागत। बहुत बहुत
startup sector, companies, and self-help groups, dear students from various schools and eco-clubs across Delhi, and my dear colleagues from DPCC, Environment Department, MCDs and other government departments of the GMCTD, a very, very, very good morning. I warmly welcome you all to this 3-day Plastic Vikalp Mela, which is for the first time the government of Delhi is kind of organizing this kind of a mega event. And the philosophy of this event is to bring together people who have products, alternative products, and also the market who are actually using these alternatives or who are actually suffering because of the absence of alternatives. We are making possible, we are giving a platform for both these people to get together and kind of understand each other, and also giving an opportunity to the market to explore various alternatives which are available in the market at very cost-effective rates. So this particular Vikalp Mela is offering an opportunity for these people to interact with each other. It is labeled as a B2B event, business 1 versus business 2 event, wherein they interact with each other and they get best rates and understand the environment friendliness of such products which is available easily in the market, so that we can slowly phase out the environmentally unfriendly plastics which is affecting the environment of Delhi. So this Vikalp Mela is a 3-day event, and in the afternoon we are having a panel discussion in which we will be discussing various alternatives to single-use plastic products, and we will be having various experts from across the country who will be coming together, and this will be curated by United Nations Environment Program. Tomorrow, sir, there will be a panel discussion on the best practices which is available in India as far as elimination of single-use plastics are concerned, and the possibility of their replication in Delhi. And this will be curated and moderated by Toxic Links. And tomorrow afternoon also, so there is another panel discussion on the economics, the cost effectiveness of alternatives to SUP, which will be curated by IPCA. And on the last day, sir, under your chairmanship, we are proposing a roundtable conference in which we'll be having manufacturers, plastic recyclers, industrial associations, market trader associations, and enforcement officials of different departments of Delhi, in which we could get together and discuss the effectiveness of enforcement and the way forward to ensure that Delhi is free of plastic items which have been banned from today. And the afternoon of the last day, we'll be having competitions for school students and college students, and which will be followed by a felicitation and closing ceremony with awards being given to the best stalls and the competition winners. So this is a 3-day Mela fair, sir. Thank you so much for coming over here. Now I welcome all the dignitaries and the visitors here, and I wish you all the best, and I encourage all the B1 and the B2 stakeholders here to take use of this wonderful opportunity which has been offered to us by the Department of Environment and the DPCC in Delhi. Thank you so much. Speech में एडवाइज़र टू द ऑनरेबल मिनिस्टर सर मैम रीना गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया आप आएं और हम सबको संबोधित करें। शुक्रिया। Good morning, Honorable Minister and all the dignitaries on the dais, my dear friends and children of Delhi. Today we've gathered here for a 3-day Plastic Vikalp Mela. All of us hear a lot about plastic and how plastics have invaded every part of our lives. And the government of India has decided to ban 19 items. Government of Delhi, under the leadership of Honorable Chief Minister Arvind Kejriwal, we welcome this ban, and we've been trying to proactively work on how do we make sure that the ban is effective. Delhi government in all its offices, starting with Delhi Secretariat, has banned the use of single-use plastic, the 19 items, and slowly we are going to have this ban across the Delhi government offices. In the past also, there have been several instances where such bans have been announced, but we've seen that these bans have not worked very well.
This time around, we are hoping, Delhi government is hoping that this ban will be effective, and I have a lot of hope from the children of Delhi who are sitting here, because it is really our generation who, for the sake of convenience, got so used to using plastic in our day-to-day lives, and that is the reason why we are in this mess today. I feel and I have a lot of hope, and we have seen that the eco clubs of Delhi government schools have very proactively taken a pledge that they will stop using single-use plastic. They will motivate their parents and families to stop using single-use plastic. And we are hoping that slowly all of us in Delhi will move towards this. Of course, there will be inconvenience, because today as a consumer, we don't have many options if we want to stop usage of single-use plastic. If I go out to buy anything, any commodity, usually it is packaged in plastic. And we've also received a lot of representation from the industry in Delhi saying that how this is going to negatively impact their economy, their livelihoods. Government of Delhi has held several dialogues with the industry, because if we want to move towards cleaner environment, the government has always, Delhi government has always helped the industry also in motivating the industry to move towards cleaner environment, whether it's incentives for electric vehicles, incentives for solar policy. In a similar manner, we are now working on how do we incentivize alternatives to single-use plastic in Delhi, and what is it that the Delhi government can help the entrepreneurs, the self-help groups to make sure that they have a sustainable business model. And at the same time, we also want to encourage the users, the bulk users, in moving towards trying to reduce the usage of all of these plastic items in our daily lives. Every day, there is one report or the other which tells us how invasive microplastics are. They've been found in the blood of newborn babies, in the womb of mothers. So, to my mind, this ban will only work if each of us, as a consumer, as an individual, as a student, as a citizen of Delhi, decides that we are going to make this ban work. It will cause inconvenience in the beginning, but we have to go back to how we used to be 20 years ago. And India has always shown the way to the world. We are probably going to be the first country who's going to implement this ban in a big way. And the world is looking at us. How do we come out with these models which work for all of us, be it the industry, be it the consumers, and the role that the government of Delhi can play. We're very seriously discussing all of those issues. But today, in closing, I would just like to say that let us all pledge that in whichever way we can reduce our own consumption of plastic items, and we have a lot of alternatives here today. If we can all start in a small way in adopting in our day-to-day life, then we can make Delhi greener, sustainable. Single-use plastic is also a lot of single-use plastic gets burnt in Delhi and in other cities, which pollutes our air, which pollutes our water, our soil. A lot of it ends up in Yamuna. So we have to look at all of this if we want to make Delhi cleaner, greener, clean Yamuna. Then single-use plastic will need to be phased out, and the Delhi government is very serious in working with all the industry associations, with the alternative manufacturers, to see how we can slowly move towards phasing this out from our day-to-day lives. Thank you. अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित करती हूँ, आप वहीं से बैठे बैठे सर, माननीय मंत्री महोदय पर्यावरण श्री गोपाल राय जी को कि अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। करूँगा, एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बांध करके भारत माँ का जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बांध दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, हम सब भारत माँ की जयकारा लगाते हैं और दिल से लगाते हैं। हम सब किसी माँ की संतान हैं।
और हम सबको इस दुनिया में अगर सबसे कोई प्यारा है तो वो माँ है। आज सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे देश के अंदर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें 19 आइटम है। उसके पहले भी प्लास्टिक के कई सारे उत्पादों को रोकने की कोशिश की गई। आमतौर पर जब हम कहते हैं कि 19 उत्पाद पर बैन लगाया गया है, तो ये उत्पादों पर बैन नहीं है। बेसिकली विकास के दौर में हम सुविधाओं के लिए इतने आगे निकल आए कि हमने इस बात का ध्यान रखना छोड़ दिया कि इस विकास की यात्रा में जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, अपने जिंदगी को बेहतर और सुखमय बनाने के लिए जो सारे अल्टरनेट उपयोग कर रहे हैं, एक दिन यही भस्मासुर की तरह हमें ही खा जाएंगे। प्रदूषण और कुछ नहीं है। प्रदूषण हम सब जानते हैं कि एक इंसान की जो पूरी सृष्टि की जो रचना है, एक इंसान की जो रचना है, उसमें आकाश, वायु, जल, अग्नि का कॉम्बिनेशन है। इसके दम पर हमारी शरीर जिंदा है, इस कंपोनेंट से हमारी शरीर जिंदा है। लेकिन जब अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसे प्रोडक्ट पैदा किए, हमने जब आने जाने की सुविधा के लिए गाड़ियों का उपयोग, धुआंधार बढ़ाया, तो उसने वायु प्रदूषण को पैदा किया और हमारी सांसें प्रदूषित हुई। हमला किस पर है? हमारी जिंदगी पर हमला है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स जिसका उपयोग अपनी सुविधा के लिए हम करते हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज जब सिंगल यूज प्लास्टिक का जन्म नहीं हुआ था, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, उसके प्रोडक्ट नहीं बने थे, तो हमारे पूर्वज जिंदा नहीं थे। ऐसी बात नहीं थी। ऐसी बात भी नहीं थी कि हम सामानों का आदान प्रदान नहीं करते थे। ऐसी भी बात नहीं थी कि हम बड़े बड़े एक समारोह का आयोजन नहीं करते थे। लेकिन आज पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह से प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जिस तरह से प्रदूषण वो पैदा कर रहा है, वो हमारी जिंदगी पर हमला कर रहा है। हमारी अगर मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, हमारी हवा प्रदूषित हो जाती है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, अगर ये तीनों का हमला अगर होता है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए ये जो 19 आइटम पर बैन है, ये प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन नहीं है, हमारे जिंदगी पर हमला करने वाले उन वस्तुओं पर बैन है जो हमारे जिंदगी को खतरे में डालते हैं। इसलिए आज पूरा देश इस बात पर सोच रहा है और एक नई पहलकदमी के तहत चरणबद्ध तरीके से इस 19 आइटम्स को आज से प्रतिबंधित किया गया। लेकिन आप सब जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अलग तरह से सोचते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जगह जगह इन्फोर्समेंट टीम बना दो, डीपीसीसी की टीम भेज दो, एसडीएम की टीम भेज दो, एमसीडी की टीम भेज दो, जगह जगह फाइन लगा दो, ताले लगा दो, इससे विकल्प पैदा हो, इससे जो है समाधान निकल जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना है प्रतिबंध तो पूरे देश के अंदर आज से लागू हुआ है, लेकिन पूरे देश के अंदर पहला राज्य है दिल्ली जिसने प्रतिबंध इन्फोर्समेंट के साथ अल्टरनेट पर फोकस करने के लिए आज इस इतने बड़े प्लास्टिक मेले का, इतने विकल्प मेले का आयोजन किया है। प्लास्टिक विकल्प मेले का मकसद है समाधान प्रस्तुत करना। हमारा मकसद है, दिल्ली की सरकार का ये मकसद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये मकसद है, इन्फोर्समेंट से पहले समाधान पैदा करो। क्योंकि जो लोग प्रोडक्शन करते हैं वो कोई और लोग नहीं है, वो हमारे लोग हैं। जो लोग बिक्री करते हैं वो कोई और लोग नहीं है, हमारे लोग हैं। इतने बड़े प्रतिबंध के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी और खास तौर से आज के इस बेरोजगारी के दौर में बहुत सारे लोगों की जिंदगी पर आज के रोजी रोटी के भी लाने पड़ेंगे। इसलिए दिल्ली सरकार इस देशव्यापी प्रतिबंध के बीच में इस 2 लाइन एक्शन प्लान पे काम शुरू कर रही है।
इन्फोर्समेंट के साथ अल्टरनेट कैसे समाज के सामने रखा जाए, इसके लिए ये 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है पर्यावरण विभाग की तरफ से, डीपीसीसी के सहयोग से। और इस मेले का जो मकसद है, आज लगभग 100 से ज्यादा, कई सारे लोगों के मन में, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, अगर ये यूज नहीं करेंगे तो इसका विकल्प क्या है, कहां से हम इसका विकल्प लाएंगे। इस मेले के आयोजन करने का जो मकसद है, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे हेल्थ ग्रुप, बहुत सारे महिलाएं इसके विकल्प के लिए, चाहे वो थैला हो और चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो थाली हो, ऐसे जो 19 आइटम हैं जिसमें से जिन पर बैन लगाया गया है, उनमें से पहला आइटम है प्लास्टिक के ईयरबड्स। जो ईयरबड्स हम बनाते हैं वो प्लास्टिक के ही बने, जरूरी नहीं है, उसका विकल्प पैदा हो सकता है और विकल्प है। बैलून के लिए जो प्लास्टिक की स्टिक लगाते हैं उसका विकल्प पहले भी था और आज भी है। प्लास्टिक के जो फ्लैग हैं उसका विकल्प कपड़ा था पहले और आज भी है। जो कैंडी स्टिक है उसका भी विकल्प है हमारे पास। आइसक्रीम की जो स्टिक है उसका विकल्प है हमारे पास। हमारे पास जो डेकोरेशन के थर्माकोल का उपयोग होता है उसके बगैर भी डेकोरेशन हो सकता है। बहुत सारे उसके अल्टरनेट विकल्प हमारे पास है। खाने में जो प्रयोग करने वाले प्लास्टिक के सामान है, प्लेट्स हम बनाते हैं, प्लेट्स का विकल्प हमारे पास है। हम जो है कप का उपयोग करते हैं उसका विकल्प हमारे पास है। ग्लास का विकल्प हमारे पास है। कांचे के चम्मच पे प्रतिबंध है, उसका विकल्प है। जो हमारे चम्मच है प्लास्टिक के बनते हैं उसका विकल्प है। चाकू का भी विकल्प है, स्ट्रा का विकल्प है। मिठाइयों पर फैशन में हम प्लास्टिक यूज करते हैं, पतली पन्नी, उसके बगैर भी मिठाइयाँ अच्छी लग सकती हैं, स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम प्लास्टिक के पन्ने को उपयोग न करें तो। उसी तरह से इनविटेशन कार्ड है, इनविटेशन कार्ड में हम प्लास्टिक को यूज करते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा हम लोगों के शादी ब्याह किसी भी फंक्शन में कोई भी व्यक्ति ये देख करके नहीं आता है कि कार्ड पर प्लास्टिक लगा है या नहीं लगा है और कैसा लगा है। वो हमने जबरदस्ती का अपने जिंदगी में हम शामिल करते जा रहे हैं। खुद के जिंदगी के हमलावरों को अपने खुशी में आप शामिल कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं एक सोच का प्रश्न है। विकल्प इसका है, उसके बगैर हम चल सकते हैं। सिगरेट के डब्बे पर जो हम पैक करते हैं उसके बगैर भी पैक हो सकता है। उसी तरह से 100 माइक्रोन से कम वाले जो पीबी बैनर्स हैं, जो बैनर्स आजकल नया आप कहीं भी देखते हो बैनर्स छपते हैं, उसका भी विकल्प है। 100 से ऊपर का भी हम उसको कर सकते हैं। इस तरह से ये 19 आइटम जिसको इस चरण में बैन किया गया है, इनका विकल्प है। लेकिन हम दिल्ली वालों को भी बताना चाहते हैं, और न सिर्फ बताना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं। आज इस मेले में आप सबके माध्यम से पूरे दिल्ली को हम आमंत्रित करना चाहते हैं, जिनके भी दिमाग में ये शक है कि जो 19 आइटम बैन किए गए हैं इसका विकल्प नहीं है। आप आज से ये प्लास्टिक विकल्प मेला त्यागराज स्टेडियम में शुरू किया गया है। कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा। 3 दिन लगातार ये मेला चलेगा। आप पूरे दिल्ली वालों से मेरा निवेदन है, जिसको ये शक है कि विकल्प क्या होगा, एक बार इस मेले में आइए। मैंने तो जितने तरह के आइटम्स यहाँ पर देखे हैं, शायद इतने ज्यादा विकल्प हैं जिसको आप जानते भी नहीं हो। तो एक तरफ विकल्प की कमी नहीं है, दूसरी तरफ जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जितनी कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो हेल्थ ग्रुप हैं, वो जो काम कर रहे हैं, अगर आप इनका खरीदारी करते हैं तो इनको रोजगार मिलेगा और लोग अपने आप को नए विकल्प की तरफ जा सकते हैं। इसलिए इस मेले का आयोजन किया गया है 3 दिन के लिए। आप इतने बड़े तादाद में इस मेले में शिरकत किए, इतने सारी कंपनियां, इतने सारे स्टार्टअप ग्रुप, इतने सारे हेल्थ सेल्फ ग्रुप यहाँ पर आए हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों की जिंदगी को बचाने की, प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है, लोग ये जानते थे कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन दिल्ली प्रदूषित शहर थी। आज दिल्ली की पहचान अरविंद केजरीवाल ने बदल दी। आज प्रदूषण के खिलाफ फाइटर सिटी के रूप में आज दिल्ली को नई पहचान मिली है। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा तेजी के साथ हर पहलुओं पे, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वो प्लास्टिक का प्रदूषण हो,
हर प्रदूषण के खिलाफ जिस सक्रियता के साथ दिल्ली के अंदर पर्यावरण विभाग काम कर रहा है, दिल्ली की सरकार काम कर रही है, आज दिल्ली को एक फाइटर, प्रदूषण के खिलाफ एक लड़ने वाली सिटी के रूप में पहचान मिली है। और हमें भरोसा है कि दिल्ली वाले इसी तरह से मिल करके दिल्ली वालों के सांसों पर जो संकट है, जिंदगी पर जो संकट है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और इसके खिलाफ हम लड़ाई को जीतेंगे। उसमें निश्चित रूप से ये मेला एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो विकल्प हैं, इन विकल्पों को आगे हम ले जाएंगे। आज से मेला जो शुरू हुआ, इसके साथ साथ दिल्ली के अलग अलग मार्केट में जो थैले हैं, जो अलग अलग अल्टरनेट हैं, उस तरफ ही इस तरह के आयोजन को, इस तरह के काउंटर्स को हम बाजारों में भी लेकर जाएंगे, जिससे कि लोगों को विकल्प को और ग्राउंड लेवल पर जानकारी हो सके। तो एक तरफ अवेयरनेस का प्रोग्राम हम चलाएंगे, साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने निर्णय लिया है कि हम इस फील्ड में काम करेंगे, उसके लिए ग्रीन स्टार्टअप पॉलिसी भी सरकार लेकर आई है, जिसके माध्यम से हम कुछ इंसेंटिव दे सकें ऐसे स्टार्टअप्स को जो इस फील्ड में, इस विकल्प में काम कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिल सके और वो युवा, वो कंपनियां, वो स्टार्टअप्स मिल करके इस प्रक्रिया में और सहयोग कर सकें। साथ ही साथ एनफोर्समेंट का भी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बातों से मान जाते हैं, समझ जाते हैं, और कई लोगों को समझाना पड़ता है, और फिर जो नहीं मानता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो दोनों प्रक्रिया हम एक साथ लेकर चलेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम एक साथ चलेगा और एनफोर्समेंट का प्रोग्राम दूसरी तरफ चलेगा। लेकिन नंबर 1 पर अवेयरनेस प्रोग्राम है, नंबर 1 पर अल्टरनेटिव लोगों के पास पहुंचाने का हमारा अभियान है। लेकिन इसके साथ साथ एनफोर्समेंट की प्रक्रिया चलेगी, और उसके लिए दिल्ली के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर डीपीसीसी की टीमें बनाई गई हैं, 15 टीमें, जो वहां पर जो है मॉनिटरिंग का काम करेंगी। और इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए तक की फाइन और 5 साल तक के जुर्माने का प्रावधान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास तौर से 3000 रुपए पर डे के हिसाब से भी डीपीसीसी फाइन लगा सकता है। जो उसके अलावा जो और स्टॉक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, या छोटे छोटे जो सेलर्स हैं, उनके मॉनिटरिंग का काम एसडीएम्स को दिया गया है। 33 टीमें बनाई गई हैं और वो भी इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा एमसीडीज को भी ये पावर दिया गया है कि वो जगह जगह मॉनिटरिंग का काम करें और इस पर एक्शन लें। लेकिन अभी जैसा मैंने पहले कहा, अल्टरनेट का प्रचार करना, अवेयरनेस करना पहला हमारा टारगेट है। तो 10 तारीख तक ये सभी टीमें फील्ड में जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी, मॉनिटरिंग करेंगी, और जो भी इसका वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा 10 तारीख तक हम उसे वार्निंग नोटिस जारी करेंगे। 10 तारीख तक हम उन्हें चेतावनी नोटिस जारी करेंगे कि आप इसको बंद कर दीजिए, इसका अल्टरनेट का उपयोग करिए। 10 तारीख तक वार्निंग नोटिस जारी होगी, 10 तारीख तक अवेयरनेस हम करेंगे। 10 तारीख के बाद अगर फिर भी कोई नहीं मानता है, उसके बाद फिर हम पेनाल्टी लगाना, प्रोसिक्यूशन की जो धाराएं हैं उसको लगाना शुरू करेंगे। तो 10 तारीख तक सभी टीमें फील्ड में जाएंगी और जगह जगह पे हम वार्निंग नोटिस जारी करेंगे कि 10 तारीख तक इस सबको आप जो है विकल्प तैयार कर लीजिए। 10 तारीख के बाद फिर एनफोर्समेंट की प्रक्रिया, उसके आधार पर एक्शन की प्रक्रिया हम लागू करना शुरू करेंगे दिल्ली के अंदर। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से निवेदन है कि इस अभियान में आपके सहयोग के बगैर सफलता नहीं मिल सकती। दिल्ली के हर लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि हमारी बहुत सारी चीजों की आदत पड़ी हुई, हमें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आदत को बदलने के लिए अपने लिए, सरकार के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, आपकी जिंदगी कैसे कम हो रही है इस बात को आपको अपनी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो दवा के लिए भागते हैं, लेकिन दवा बीमार हम ना पड़े इसके लिए एहतियात बरतना पड़ता है, उन सोर्सेस को खत्म करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी है। तो इस जिंदगी को बचाने का अभियान है।
और जो दिल्ली ने एक फाइटर, पोल्यूशन के खिलाफ एक फाइटर सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, हमें इसे और आगे ले जाना है। पूरे देश में ये बैन लग रहा, लेकिन दिल्ली वालों को इसमें नंबर 1 होना है, विकल्प देने में भी नंबर 1 होना है और इन्फोर्समेंट में भी नंबर 1 होना है। हमें भरोसा है कि हम सब मिलकर के दिल्ली वाले इस अभियान को सफल बनाएंगे और एक पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने का जो लक्ष्य है अरविंद केजरीवाल जी का, हम सब मिलकर के इसे पूरा करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका शुक्रिया। जो आज नहीं आए हैं उनसे भी निवेदन है कि यहाँ पर लगातार डिस्कशन, अलग अलग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तमाम कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। परसों 3 तारीख को जितने स्टॉक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, जिनसे हम बैठ करके और कैसे इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सरकार और क्या सहयोग कर सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। 10 तारीख तक जागरूकता अभियान और चेतावनी नोटिस जारी होगी। 10 तारीख के बाद फिर हम इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को तेज करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।